दोस्तों, अगर आपका भी सपना है विदेश में जाकर के पढ़ाई करने का, स्टडी वीज़ा लगवाने का, तो अब आपके शहर हिसार में हम मुलाकात करवाएंगे एक ऐसे इंस्टीट्यूट की जो सबसे अच्छा स्कोर आपका बनवा कर देगा और जहां का रिकॉर्ड है पिछले 17-18 साल से वो लगातार सैकड़ों हज़ारों बच्चों को सक्सेसफुली वीज़ा लगवा करके विदेशों में भेज चुके हैं और अब आप भी अपने सपने पूरे कर सकते हैं। तो चलिए अंदर चल करके बात करते हैं यहाँ के डायरेक्टर से और उन बच्चों से जो एस्पिरेंट्स, जो बच्चे कैंडिडेट्स यहाँ पर आकर पढ़ाई कर रहे हैं और जिनका ड्रीम्स है फ़ॉरेन में जाकर, बाहर की यूनिवर्सिटीज़ में जाकर वहाँ पर स्टडी वीज़ा लगवा करके पढ़ाई करने का। तो चलिए सीधा अंदर चलते हैं और बात करते हैं यहाँ के डायरेक्टर और स्टूडेंट्स से। तो व्हाट्स योर गुड नेम? My name is Vivek Kanwar. आप हरियाणा से ही हैं? I belong to Hisar, Haryana. हिसार हरियाणा। सो यहाँ पर आने का सबसे पहले मुझे कारण बताइए, किसने आपको ये सलाह दी या किसने आपको एडवाइस किया कि मुझे यहाँ पर आके अब आगे पढ़ना है, ये आईलेट्स का कोर्स करना है? One of my closest friend advised me to do IELTS course from this place because it's quite famous all over the Haryana for its faculties as well as the teaching method they used to teach us. एक और स्टूडेंट हमारे साथ मौजूद हैं, आइए उनसे बात करते हैं। सो व्हाट्स योर गुड नेम? Hello, my name is Jyoti and I'm a student in Exposure. ओके। सो मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ ज्योति जी, क्या आप किसी कंट्री में विजिट भी कर चुके हैं? No, sir, I haven't traveled to any country yet. I'm planning to move to Canada. कनाडा। Yes, sir. अच्छा, मैं आपसे एक क्वेश्चन जानना चाहता हूँ कि हमारे जो नॉर्थ इंडिया में हैं मोस्टली कनाडा ही जाते हैं। आपने देखा भी होगा, अगर मैं पंजाब की बात करूँ, हरियाणा के भी जो कैथल, कुरुक्षेत्र, करनाल के लोग हैं और अब हिसार फतेहाबाद के लोग, कनाडा में ऐसा क्या है, कनाडा को ही चूज़ क्यों करते हैं? Sir, first of all, it is worth the pocket of the people, and secondly, most of the people's relatives are already living there. Like the around on people are living there, so they get a lot of benefits and help around them. So that is the main reason. I think that the North people are more towards going to Canada. Also, if we talk about another countries now, then they are so expensive as compared to Canada. So that can be the main reason, I think, because the people in north side, they are like middle class people. ओके। So they want to send their children at a place where it is affordable and where it is not so costly for their pocket. टॉक अबाउट द फैकल्टी, तो किस तरह की फैकल्टी यहाँ पर है और क्या क्या कितने क्लासेस लगती हैं डेली यहाँ पर? Well, as far as I know that they provides a lot of efforts to students to gain more knowledge about the English language, and the teachers are very familiar as well as they are very good bonding with the students, so students can feel better and gain more knowledge. व्हाट इज़ द मेन सोर्स ऑफ इनकम इन कनाडा? लोग कैसे अर्न करते हैं? क्योंकि हम इंडिया में रहते हैं, हमें पता है यहाँ पर क्या क्या होता है, या तो गवर्नमेंट सेक्टर है या प्राइवेट सेक्टर है। सो आपको लोगों को इतना तो पता चल जाता होगा यहाँ रह करके, फैकल्टी जब आपको पढ़ाती है, आप एक उस एटमॉस्फेयर में रहते हैं, तो वहाँ पर क्या कुछ रहता है? अगर यहाँ से बच्चे जाते हैं 20-22 साल के, तो वहाँ मेन सोर्स ऑफ इनकम क्या रहता है? Sir, first of all, I would love to enlighten this point that whenever a student is in his graduation, so at the same time only they start earning, whereas it's not in India. That people are more towards like you study first, then you go for the good jobs. But their students are more towards that they should take out their own expenses from themselves only. They should not overburden their parents. So the main source of income can be in any like through any medium. It's not specific. It depends upon your qualifications, like how much qualified you are and where you actually stand. So it actually depends upon your communication skills, how you interact with people. So that is the main part where like students can earn money. So, आप कौन सी कंट्री में जाना चाहते हैं? I would like to plan for Canada. कनाडा में। तो आपने मतलब कनाडा का जो ड्रीम आपने सोचा है, तो वहाँ जाकर आप क्या करें? कुछ ऐसा भी अभी तैयारी किया आपने? Yes, I will definitely like to do part-time job as well as I like to do my higher education because the education system in Canada is quite much better than my nation. So that's why. यहाँ पर मोस्टली बच्चे हैं जो बाहर से आ रहे हैं, दूसरे ज़िलों से आ रहे हैं, तो इसी को चूज़ करने का क्या कारण है? मतलब वाई अब्रॉड दिस इज़ Sir, इंस्टीट्यूट the एक्सपोजर? best part which I found here was the two-way interaction. Like people, the teachers over here are not just teaching the students. They are like they're completely involved into the students. Where they are just looking for the students where they are lagging behind, where they are making the mistakes, and they analyze the mistakes and then they take out the best part of the students. So that is the main reason that students are like coming towards exposure, and that was the main reason I also came to join exposure. आपकी फैमिली का क्या सपोर्ट है आपकी तरफ से? My family is very supportive to me in this decision, and also my father advised me to do IELTS and going to abroad to continue higher education. Sir, one more thing I would love yes, to sure. like add on that we get free counseling here for the visa.
Like students whosoever are studying here, now they are not charged any processing fee if we go for our visa filing from here only. And the second part which I found personally very good was that they are providing free English speaking classes, so which is mandatory for the north side people, because we are not more towards into communication skills, especially in English. So that is the main part which is to be focused in our side of the people. So that was the best part which I found, that we can stay here from morning till evening and we can study here and we can get our doubts cleared from the teachers. कितना खर्चा है आपका तैयारी करने में? In exposure, the fees is very affordable. It's all around 8,000. And while talking about the another institution, the coaching fees are very expensive. And they also do not provide good facilities like better education as well as the module system and the mock test. So that's why I choose this. कई बच्चे जो होते हैं नॉर्थ इंडियन, वो इंग्लिश से काफ़ी घबराते हैं। वो सबसे पहले मतलब यही सोचते हैं कि इंग्लिश तो हमारे बस की बात नहीं, और नॉर्थ इंडियन के साथ ये खास चीज़ रहती है। तो ये जो डर होता है, इसको कैसे दूर करें बच्चे? उन बच्चों को आप कैसे मोटिवेट करेंगे जो वीडियो को देख रहे हैं, जिनको इंग्लिश को देख के ही डर लगता है? मतलब इंग्लिश बोलना तो दूर, वो इंग्लिश सब्जेक्ट से ही थोड़ा सा अपने आप को आइसोलेट रखते हैं। I already mentioned that the two-way conversation which happen here na, between the students and the teachers. Like students are not only teachers are not only just teaching, they are looking for the students that where you're actually lagging behind. So then they like force the student to speak, to come forward and to speak in front of the like 22-25 students. And once they are able to speak in front of them, they can speak anywhere in the world. एक्सपोजर ने किस तरह से बच्चों को तैयार किया है, आप देख सकते हैं। पिछले जो बच्चे आए उन्होंने कितने बढ़िया कॉन्फिडेंस के साथ बातें शेयर करी। कुछ और बच्चे हमारे साथ हैं, उनसे बात कर लेते हैं। आपका क्या नाम है? Sir, my name is Vikas and I am studying in exposure since last 2 months. अच्छा, पिछले 2 महीने से हैं। आपका नाम क्या है? My name is Radhika and I have been here for the last 2 months. ओके, व्हाट इज़ योर नेम? I am Himangi and I have completed my course of 2 months. ओके, सो आप कहाँ से हैं तीनों? Fatehbad से। आप? I am from Hibsar. हिसार। I am from Hisar. हिसार। सो जब आप यहाँ पर नहीं आए थे, यानी 2 महीने पहले की अगर मैं बात करूँ, उसमें और आज में कितना चेंज आया आपके अंदर कॉन्फिडेंस लेवल पे, इंग्लिश बोलने में? बताएं थोड़ा। Well, actually in 12th class, the students doesn't like speak in English, and if we do speak in English, then they'll make fun of us. And my habit of speaking English was like negligible. But since I came here, it has improved very much. And in IELTS, like reading also, I was very weak in reading, and my time here has improved me a lot. सो मतलब आपकी वोकैब भी बढ़ी है, वोकेबलरी भी बढ़ी है, यानी कि यहाँ से आने से पहले जैसे कुछ आपको इंग्लिश के कुछ ही शब्दों का पता होगा, कुछ नए नए वर्ड्स भी आपने सीखे होंगे, कुछ ऐसा भी हुआ है? और इंग्लिश का बोलने का जो एक फ़्लो होता है, उसमें भी चेंज आया है कुछ? Well, before my coming here, I used to speak very basic English, like just conversing in very basic vocab. But now, after coming here, my vocab has become more complex, and it has improved very much. तो कौन सी कंट्री में जाने का आपने प्लान बनाया है? Well, I have planned to to move to Canada. कनाडा। आपका? Canada. Canada. आप सभी को मतलब कनाडा ही जाना है? मतलब जितने मिले अभी तक सभी कनाडा जा रहे हैं, कोई ऑस्ट्रेलिया, यूएस? Well, it depends on your band score, that how you score in the exam. But I have a longing to Canada because it furnishes us with a lot of opportunities, and there are basically a lot of things you can explore. ओके, सो कनाडा की करेंसी क्या है पता है आपको? It's a Canadian dollar. कितना है कैनेडियन डॉलर इक्वल टू? 60 rupees. 60 है। ओके, तो अगर सर्वाइवल की बात करें, आपको पता है वहाँ टेम्परेचर वगैरह कितना रहता है? कुछ इस तरह का आइडिया है आपको? Yes, there is quite a harsh temperature in the Canada. That's quite cool, but with time you can surely adapt to the temperature of the Canada. कोई फैमिली में से पहले गया हुआ है या आप पहली बार जाएंगे? In family, I would be the first to visit Canada, but I have a friend circle who currently living in Canada. ओके, सो दोस्तों ये 2 ही महीने हुए हैं और आप देख सकते हैं कितने अच्छे फ़्लो के साथ वो इंग्लिश में बातें कर रहे हैं, अपने सुझाव, अपनी सजेशंस बता रहे हैं, अपना वहाँ का जो भी क्वेश्चन हम पूछ रहे हैं, तो एक कॉन्फिडेंस है इनके अंदर। और जो पहले आए थे वो काफ़ी टाइम से यहाँ पर तैयारी कर रहे हैं, तो उसमें चेंज ज़रूर होता है। बच्चा जितना ज़्यादा टाइम यहाँ स्पेंड करता है उसके अंदर चेंज ज़रूर आता है। फ़िलहाल एक्सपोजर एजुकेशन कंसल्टेंट के ऑफिस में हम बैठे हैं और हमारे साथ डायरेक्टर मौजूद हैं। सर नमस्कार और आपका स्वागत है हमारे चैनल पे। आपका नाम बताएं सर। मेरा नाम है मोहिम गुप्ता। ओके, सो मोहिम गुप्ता जी के साथ हम बैठे हैं। सर सबसे पहले क्वेश्चन मेरा ये है कि
एक्सपोजर को ही क्यों चुने स्टूडेंट्स जो अभी देख रहे हैं वीडियोज़ को? देखिए, कोई भी अगर आप सेवाएं लेना चाहते हैं विदेश से संबंधित, हम इसलिए प्राथमिकता दे सकते हैं आप हमें, क्योंकि हमारा एक अनुभव है, हमारा बहुत पुराने हमारा सेवाएं हम दे रहे हैं, और सैकड़ों बच्चे हमारी सेवाओं का लाभ उठाते हुए बड़े ही निष्पक्ष तरीके से विदेश में अपनी चुनिंदा यूनिवर्सिटीज़ टॉप यूनिवर्सिटीज़ 100% स्कॉलरशिप विदाउट किसी फीस के अच्छे से रह रहे हैं। सर कितने सालों से रन कर रहे हैं आप अपने इस सन 2004 से हम हिसार में, और हमारी एक ब्रांच भी है हिसार कैंट में, हमारी सेवाएं वहाँ पर मौजूद हैं। लगभग 17-18 साल से कंटिन्यू आप चला रहे हैं इसको। सर कितने सक्सेसफुली आप स्टूडेंट्स को बाहर भेज चुके हैं विदेशों में? देखिए, नंबर तो काफ़ी अच्छे हैं, और कोविड वैक्स के बाद जब से उसके नंबर्स बहुत ज़्यादा आ गए हैं हमारे पास, तो हर सालाना हम लगा लीजिए अराउंड 400 से 500 बच्चे हम रिक्रूट कर पा रहे हैं इस टाइम। पहले थोड़े कम थे, मतलब कि 200-150 बच्चे जाते थे, अब काफ़ी ज़्यादा अच्छे नंबर आ रहे हैं, बढ़ता जा रही है। ओके सर, आप मुझे ये बताएं कि यहाँ पर तो आपकी एक नर्सरी है जहाँ बच्चों को तैयार किया जाता है, उनको प्रिपेयर किया जाता है, उनकी स्पोकन इंग्लिश अच्छी सुधारी जाती है, जो उनका आइलेट्स होता है, पीटी होता है, उसका स्कोर आप बनवाते हैं। लेकिन प्रॉब्लम कहाँ आती है एक बच्चे को बाहर भेजने में? जैसे कुछ कंट्रीज ऐसी होती है जहाँ पर जाना बड़ा मुश्किल हो जाता है, जहाँ का सुना है कि वीज़ा लगने में प्रॉब्लम होती है, तो वो दिक्कतें कहाँ आती हैं यहाँ के बाद? जैसे यहाँ से बच्चे ने कर लिया, बैंड भी अच्छा बन गया, उसके बाद भी क्या क्या चैलेंजेस वो बच्चे फेस करते हैं बाहर विदेश में जाने के लिए, या फिर वो कौन कौन सी कंट्री है जहाँ पर बड़ी मुश्किल से पहुँच पाते हैं बच्चे, लेकिन उनका ड्रीम होता है वहाँ जाना? देखिए, मुश्किल किसी भी कंट्री में नहीं है, मैं आपको बड़े स्पष्ट तरीके से बताता हूँ। सिर्फ 2 चीज़ें हमें ध्यान रखते हुए रखनी है, एक तो बच्चे की पढ़ाई, दूसरा उनकी अंग्रेज़ी में कमांड, जिसकी वजह से आईएलटीएस और पीटी में जिसको हम बोल सकते हैं, जिनको हम बहुत अच्छी ट्रेनिंग देते हैं, वो होना ज़रूरी है। साथ साथ जो पेरेंट्स जो भी व्यवसाय है, चाहे वो कृषि क्षेत्र से हो, चाहे वो व्यवसाय हो, उनका बिजनेस हो, चाहे वो गवर्नमेंट नौकरी में हो, चाहे प्राइवेट जॉब में हो, उनके डॉक्यूमेंट्स पूरे चाहिए। जैसे कि अगर वो जॉब कर रहे हैं तो उनकी जैसे फॉर्म 16, सैलरी स्टेटमेंट्स, अगर बिज़नेस कर रहे हैं तो ITRs, बिज़नेस के रिसीट्स, और अगर वो कृषि क्षेत्र से हैं तो इनकम सर्टिफिकेट्स, ज़मीन के कागजात, ये सब अगर उनके पास है तो किसी भी देश में वो आराम से पढ़ सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। ओके सर, वीज़ा कितने प्रकार के होते हैं? एक तो हमने सुना है टूरिस्ट वीज़ा होता है, एक एजुकेशन होता है, इसके अलावा और कौन कौन सी वीज़ा? देखिए, वीज़ा बहुत तरह के होते हैं। एक डिपेंडेंट वीज़ा होता है जो कि छोटे समय के लिए जाया जाता है, जैसे लंदन में 6 महीने का स्टे होता है। एक विजिटर वीज़ा होता है, मान लीजिए कोई बच्चा है, उनके माता पिता आना चाहते हैं तो उनके लिए विजिटर वीज़ा होता है। और एक ऐसा टूरिस्ट वीज़ा होता है जो कि हम सिर्फ घूमने कुछ समय के लिए जाना चाहते हैं। और हमारी जो सेवाएं हैं मोस्टली हम देते हैं स्टडी वीज़ा के लिए, पढ़ाई के लिए। ओके, कुछ बच्चों के या कुछ लोगों के, या जो अपने बच्चों को भेजना चाहते हैं, उन पेरेंट्स के माइंड में ये डाउट रहता है कि ये वीज़ा आखिर होता क्या है। लोग पासपोर्ट को जानते हैं क्योंकि पासपोर्ट इजीली बन जाता है, पासपोर्ट एक आईडी का काम करता है। वीज़ा के बारे में थोड़ा सा हमारे व्यूवर्स को बताओ कि कोई कार्ड होता है या क्या चीज़ होती है, मतलब बाहर भेजने का एक क्या चीज़ होती है वीज़ा? देखिए, वीज़ा एक परमिशन होती है जो कि जिस भी देश में हम जाना चाहते हैं वो हमारे पासपोर्ट पे एक स्टैंप लगा कर देते हैं। ओके। ऑस्ट्रेलिया, हर एक कंट्री का अपना सिस्टम होता है, कोई स्टैंप वहाँ जा कर के लगती है, किसी की स्टैंप यहाँ से लगवा करके जाया जाता है। तो ये देश के और विदेश पे डिपेंड करता है। हाँ जी, कुछ कंट्री जैसे तो वीज़ा ऑन अराइवल होता है, वहाँ पहुँच कर करवाना होता है, जस्ट एक परमिशन को वीज़ा बोलते हैं। ओके, तो ये कन्फ्यूजन लोगों की दूर हो गई होगी, जिनका ड्रीम है या जिन पेरेंट्स को मन में रहता है यार वीज़ा लगवाना कहीं कॉस्टली तो नहीं है। सर कौन सी कंट्री का वीज़ा लगवाने में सबसे ज़्यादा खर्चा आता है? देखिए, सभी कंट्री जो इंग्लिश कंट्रीज़ हैं उनमें इनिशियल जो शुरुआती हमारा खर्च होता है वो रखता है कम से कम 10 से 12 लाख का। हाँ जी, मतलब कि 7 लाख से लेकर 10-12 लाख। अगर ट्यूशन फीस में जैसे किसी को 100% स्कॉलरशिप है तो वो बहुत और भी कम हो जाता है। नॉर्मली 10 से 12 लाख में खर्चा रहता है। जो बच्चा यहाँ पर आकर पढ़ना चाहता है आपके एक्सपोजर के अंदर, उसके पास लगभग इनिशियल अमाउंट कितना होना चाहिए यहाँ पर आकर एडमिशन ले ले, और जो पूरा उसका अच्छा बैंड बन जाए 7+ या 8+ बन जाए, उसके लिए उसको लगभग कितना फ़ीस स्ट्रक्चर आपका रहता है? देखिए, आइल्स की फ़ीस हमारी बहुत ही एक वाजिब और कहते हैं ना किफ़ायती फ़ीस हमने रखी हुई है, क्योंकि बच्चों के वही फैसिलिटीज़ हम उसी अकाउंट उससे ज़्यादा हम देना की कोशिश करते हैं। तो महीने का खर्चा अगर हम देखें पूरा पैकेज, ये 15 से 20 हज़ार में उनकी तैयारी हो जाती है इस चीज़ में महीने के। हाँ जी, ओके, मतलब महीने नहीं, मतलब कि पूरा पैकेज 15 से 20 हज़ार में 2 या 3 महीने में उनकी तैयारी हो जाती है।
अपार्ट फ्रॉम बैंड्स यहाँ पर और क्या क्या क्लासेस के अंदर सिखाया जाता है? जैसे पर्सनैलिटी डेवलपमेंट का भी स्टूडेंट्स बता रहे थे, स्पोकन इंग्लिश, इसके अलावा और क्या क्या उनको बताया जाता है उनकी वेल ग्रूमिंग के लिए? क्या क्या? देखिए साथ साथ उनके इंटरव्यू सेशंस भी होते हैं, क्योंकि सिर्फ एक आइल्स का टेस्ट करना और एक इंटरव्यू देने में फ़र्क होता है। कई कंट्रीज़ में एडमिशन के बाद भी इंटरव्यू लिए जाते हैं, ऑस्ट्रेलिया में, यूके में, तो उनकी हम तैयारी करवाते हैं उन बच्चों को। डॉक्यूमेंटेशन असिस्टेंस पूरी हमको दी जाती है सारी, और साथ साथ जब वो तैयारी कर रहे होते हैं उसके बीच में भी हमें पता है कि उनको आगे भविष्य में क्या क्या उनको ज़रूरतें रहेंगी, किस तरह के डॉक्यूमेंट्स उनको तैयार करने हैं, तो हम पहले उनको गाइड कर देते हैं इस चीज़ के। तो दोस्तों लगभग जो सवाल आप लोगों के थे वो मैंने पूछ लिए हैं। फिर भी अगर कोई क्वेश्चन आपके माइंड में आता है तो कमेंट बॉक्स के अंदर आप बता सकते हैं। और जैसा कि फ़ीस स्ट्रक्चर होता है, मेन क्वेश्चन आपके मन में आता है वो यहाँ पर सर ने क्लियर कर दिया है। कौन सी कंट्री में जाने का क्या प्रोसेस रहता है वो भी इन्होंने बता दिया है। अगर फिर भी कोई क्वेश्चन आपके माइंड में है तो प्लीज़ आप कमेंट बॉक्स में अपने कीमती सुझाव जरूर दें और जुड़े रहे HN24 के साथ, और एक बार विजिट करें ज़रूर एक्सपोजर में। सर यहाँ का एड्रेस और मुझे बता दीजिए आपके। देखिए हमारा जो ऑफिस है वो ग्रीन स्क्वायर मार्केट बिल्डिंग नंबर 94 पर है। और बस एक लास्ट में एक ज़रूरी मैसेज मैं देना चाहूँगा कि वीज़ा के काम में आप उन एजेंट से बच के रहिए जो आपसे वीज़ा लगाने से पहले पैसे चार्ज करते हैं, क्योंकि इसमें सारा खर्च आपका जेब का सारा यूनिवर्सिटी और वीज़ा की कंट्री में जाता है। एजेंट्स का इसमें कोई खर्च नहीं होता है, सारी सेवाएं निःशुल्क होती हैं। और वीज़ा के बाद अगर कोई एक्सपेंस है भी तो वो भी बच्चे की प्रोफाइल पर ही होता है, जो कि कहते हैं ना 5-10 हज़ार होता है, मुश्किल से उतना ही होता है। तो इससे आप बच के रहें, शॉर्टकट्स में मत जाइए, जेन्युइन वर्किंग और जो आपको ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन दे उन्हीं से आप जुड़िए। अगर हमारे पास आते हैं हम आपको ये वादा करते हैं कि हमारी तरफ से बिल्कुल निष्पक्ष तरीके से बहुत अच्छी प्रोसेसिंग आपको अनुभव मिलेगा। और इसी वजह से ही है कि सैकड़ों परिवार अभी हमसे बड़े प्रेम और प्यार से काम सेवाएं ले रहे हैं। थैंक यू सो मच हमसे बात करने के लिए। और दोस्तों आप देख लीजिए माहौल, बच्चों से हमने बात करवा दी, डायरेक्टर से हमने बात करा दी, और एक पूरा लुक आप ले लीजिए एक्सपोजर एजुकेशन कंसल्टेंट ऑफिस का, और पूरे जहां क्लासेस लगते हैं, क्लासेस में स्टूडेंट्स बैठते हैं, तो यहाँ पर पूरी तरीके से बच्चे को इस तरह से तैयार कर दिया जाता है कि वो ईजिली जो है अपना वीज़ा भी लगवा सकता है और बाहर जाकर सेटल भी हो सकता है। तो ये इस वीडियो में इतना ही, फिर किसी नए अपडेट के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।